So today we are trying to address one critical question जो यंगस्टर्स के माइंड में होता है कि सीए करने के बाद सर इंडिया में जॉब करें कि दुबई चला जाएं, क्या दुबई में बहुत पैसा बच सकता है। सो आज रियलिस्टिक एक सिनेरियो पेंट कर रहे हैं, इनफैक्ट 6 सिनेरियो पेंट कर रहे हैं। एंड आवर प्रोफेसर फॉर दिस विल बी कनक टिब्रेवाल हु इज बीन देयर डन दैट, क्योंकि वो दुबई में ही काम करता है एट इमामी ग्रुप। एंड सो कनक, ओवर टू यू। हमें बहुत इंटरेस्टिंग तरीका से समझाओ कि अगर एक सीए फ्रेशर या लेट से 1 to 2 years के बाद कोई दुबई जाता है तो उसको एंट्री लेवल पे कितना पैसा बच सकता है, क्या खर्चे लगते हैं, बिकॉज लोगों को खर्चे के बारे में उतना आइडिया नहीं है। एंड वो फिर नेट इंडिया में कितना पैसा भेज सकता है। एंड मे बी देन वी कैन फॉलो अप विद, अच्छा ये करियर प्रोग्रेशन इसमें थोड़ा सा कैसे होगा। सो ओवर टू यू। Thank you so much, sir, for letting me do this. Just a brief introduction of myself. I'm a CA, and I've shifted to Dubai last year through Imami Group, and I've been working in the financial reporting side of the company, and it's a very good experience. Coming to the question for which I'm here today is what is the salary range and the savings which a CA fresher can do वर्किंग इन दुबई. सो पहला चीज तो ये है सर, देर इज अ मिथ कि दुबई में आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है स्टार्टिंग लेवल पे एंड यू आर बिकमिंग रिच रिच. ऐसा कुछ नहीं है. जस्ट टू ब्रेक दी stereotype. So if we start with a 10,000 monthly salary, which is a very basic to survive in Dubai, so we can see that 2000, और मैं सर बता देता हूँ कि 2000 में there is decent sharing apartments, there will not be private apartments for you. But I believe कि जैसे हम बैचलर्स हैं तो if we shift to new place, we can accommodate in the sharing things. शेयरिंग So मतलब कितना, एक रूम में 2 लोग की अलग अलग रूम है, 3 BHK में 3 लोग? this also depends. Like मैं जहाँ पे रहता हूँ, that's a sharing of two in one room, and it's a 3 BHK apartment. So total 6 people live there. But there are also certain rooms or certain accommodations where there are 4 people or 5 people stay together. But that's not advisable for for profiles like us because it's very uh, indecent. So I would suggest go for a decent double sharing, because उसमें क्या है सर, adjustment आपको सिर्फ एक जन के साथ करना है. You don't have to adjust with so many other people because there are many adjustments need to be done when you are staying at a sharing apartment. So 2000 basic for that double sharing. If you want to rent out a studio or a 1 BHK, that will cost you around 5,000 a month. So you will not be having enough savings to send money back to India. So 2000 is the minimum range where people share apartment can rent easily. And Biswa and Wi-Fi. So basically, the electricity which we pay here and the water. So those are combined in Dubai. We call it Deva. So we pay around generally 500 ही होता है because that's not expensive. दुबई की बेस्ट चीज ये है कि necessities are not expensive. Just that rent part is expensive. Other things, if you see, I've covered like cook, grocery, transport, and other miscellaneous basic. If you want to do your laundry and cleaning, etc., whatever. So it gets done in this cheaper amount. At net, if you're earning 10,000, 5,000 would be your expenses in Dubai. Okay. And considering that you get some PLVR, or you may call it a bonus, yearly bonus or gratuity, it makes you around 16 lakhs a year for a fresher, which I guess in today's world, at this time, a person is earning in India also. It's just that, in Dubai, there are career progressions which you can see, and आपको अच्छी increment से अच्छी growth मिल सकती है वहाँ पे. But there is no income parity कि भाई आपको बहुत ज्यादा इनकम वहाँ पे मिल रही है दुबई में. So similarly, I've plotted other two scenarios तो यहाँ for पे a तुमने इंडिया rent का based. ट्रैवल कंसिडर किया है कि आप इंडिया आओगे या समथिंग कंपनी दे देगा, वो कैसे कर रहे हैं?
दैट इज वेरी बेसिक सर, कि अगर आप ये कर रहे हो तो ईयरली वंस एवरी कंपनी प्रोवाइड्स दैट ईयरली वंस राउंड ट्रिप टू योर होम कंट्री on actual basis. So I have not included that here because that is anyways your not your income or savings. जो आपका खर्चा होगा वो आपको मिल जाएगा. That is not any part of it. रफली कितना लग जाता है, जैसे कैलकाटा टू दुबई का अप एंड डाउन कितना रुपया लग जाता है? और सर कैलकाटा तो दुबई अपना जो राउंड ट्रिप है वो 2000 AED के आसपास बनता है, which is around 45 46,000 45 46। INR. तो अगर कोई हाँ. होम सिक है, हाँ, साल में 4 बार घर आना चाहता है, तो उसका ये 1.25 लाख रुपए और खर्चा हो जाएगा, राइट? उसका 1.25 लाख और खर्चा हो जाएगा सर. बट इसमें एक एक ट्रिक है जो मैं यूज करता हूँ, कि जैसे कि दुबई टू मुंबई फ्लाइट्स आर वेरी चीपर. सो इफ यू आर पेइंग 2000 फॉर दुबई टू कोलकाता राउंड ट्रिप, you might end up paying only 700 or 800 AED, which makes around 20,000 INR. और फिर आप मुंबई से कुछ फ्लाइट या कुछ भी ट्रेन वट एवर यू फील कंफर्टेबल विद, आप वो लेके कोलकाता आ सकते हो. सो इट्स अ सिस्टम विच आई फॉलो सो दैट अपना ज्यादा ना लगे. बट मैंने कोलकाता इसमें इज वेरी देखा एक्सपेंसिव, दुबई टू कि कोलकाता. तुम्हारा मंथली सैलरी जो है 10,000 से 11,000 ही है, और सिनेरियो 6 में दिखाओ कितना आ रहा है। सिनेरियो 6 में इफ वी कंसिडर दैट तो 12,000 ही टू मैक्स है क्या थाउजेंड बेसिकली वहां पे सैलरी? उससे ज्यादा नहीं मिलता एक फ्रेशर को? और सीए फ्रेशर को उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, बिकॉज देर आर सर्टेन थिंग्स कि वहां पे अभी जैसे नया वैट आया है, नया कॉर्पोरेट टैक्स आया है. तो उसके लिए इवन इफ यू हैव स्टडीड, यहाँ से आपने कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स कर भी लिया इंडिया से, बट देन दे आस्क एक्सपीरियंस, कि भाई मेरे को कॉर्पोरेट टैक्स में तुम्हारा एक्सपीरियंस चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. वैट में आई नीड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. और इफ यू आर नॉट इन दिस टैक्स और कंप्लायंस, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में अगर आप हो तो दे आस्क फॉर जीसीसी, गल्फ कंट्रीज का एक्सपीरियंस चाहिए, बिकॉज बिजनेस रन्स डिफरेंटली देयर. व्हाट आर दी सिनेरियोज देयर. तो इसीलिए 12,000 इज द मैक्स फॉर अ सीए फ्रेशर. एंड इन सम सिनेरियोज सर 10,000 से भी नीचे मिलता है सीए फ्रेशर्स को, बिकॉज आई सीन सीए फ्रेशर्स वहां पे कुछ कुछ जो लोग 8,500 9,000 में भी काम कर रहे हैं. एंड उन वो अच्छा उनका सेविंग्स क्यों होता है सर? क्योंकि वो लोग ना, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, दे लिव इन अ 4 शेयरिंग अपार्टमेंट और 5 शेयरिंग अपार्टमेंट. तो वहां पर रेंट डिसेंटली कम होता है. मे बी आपका 1,000 dirham में ही काम हो जाए, तो यू एंड अप सेविंग मोर 25,000 a month. बट दैट्स ऑल्सो नॉट इनफ फॉर अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. तो इसलिए आई प्रेफर कि सर उतना कम अगर आपको सैलरी ऑफर हो रहा है तो यू डोंट इवन शिफ्ट टू दुबई, बिकॉज उसके नीचे आपका कुछ बचेगा नहीं. इट्स ऑलमोस्ट नो नेक टू नेक हो जाएगा. और नेक टू नेक में सर ऐसा सब कुछ नहीं है. यू हैव टू लिव अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली. फॉर मी आई एम अ सिंगल चाइल्ड, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लिव अपार्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स. यहाँ पे उनको भी प्रॉब्लम्स, वहां पे आपको भी प्रॉब्लम्स. सो यू नो इससे नीचे की सैलरी में इफ यू आर शिफ्टिंग टू दुबई, यू आर मेकिंग अ वेरी बिग मिस्टेक, वेरी बिग मिस्टेक. ओके। अब अपने देखते हैं, तो ऑलमोस्ट लाइक आप 16 लाख रुपया यहाँ बचा लिए सिनारियो 1 में। सिनारियो 2 में कितना बचा है? सिनेरियो 2 में इफ 1,000 dirhams आपका मंथली इंक्रीज हो रहा 19 है, तो इट लैक्स विल मेक यू अराउंड सिनारियो 19 3 lakhs. पे, जहाँ इट विल पे मेक आपका यू साल 22 lakhs. 12,000 रेंट, 22 लैक्स आप बचा सकते हो। एंड दिस इज लाइक इवन फॉर एन एवरेज। तो वहां तो ये नहीं होगा कि रैंक होल्डर ही होना चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट बिग फोर होना चाहिए, वैसा कुछ नहीं है। Not required, not required, not required, तो because ये Dubai बहुत बड़ा market में sir, एडवांटेज है कि अगर there आप is a major. सिनेरियो 3 में चले जाते हो, तो यू एंड अप मेकिंग 22 लैक्स Yes, पर annum, अज्यूमिंग कि आप साल में which एक is बार which is करो। a good amount for a fresher. अब ये यही हाईएस्ट है क्या सिनेरियो 3, 12,000 देन 2,000? बिकॉज आई थिंक उसके बाद तो सैलरी तो मैक्स हो गया 12,000। सिनेरियो 6 में यू हैव पुट रेंट 2,500, तो इसमें 20 21 लाख रुपए बच रहा है। तो ये बेसिकली 16 लाख से 22 लाख का रेंज में पैसा बच रहा है अपने घर में। करेक्ट सर, करेक्ट. और इसमें भी वेयर आई हैव कैलकुलेटेड ओनली कि आप ना बेसिक लाइफ जियो, बट वो दुबई है. यू यू टेम्प्ट विथ मेनी थिंग्स, मेनी एक्सपेंसेस, कि आई गो पार्टी विथ माय फ्रेंड्स, आई गो यॉट पार्टी, आई गो बीचेस. बहुत सारी चीजें हैं. तो इफ यू स्टार्ट स्पेंडिंग ऑन दोस थिंग्स, गया सेविंग्स.
जीरो। और ये ग्रेचुटी अगर मैं सपोज 2 साल बाद छोड़ के आता हूँ, तो जैसे इंडिया में 5 इयर्स का रूल रहता है ग्रेचुटी का, वहां कैसा है? दिस इज वेरी गुड थिंग। 1 year, sir. 1 year of 21 days of your 1 month basic salary if you complete 1 year. So that's very very good thing of Dubai कि आपको 1 साल के अंदर ग्रेचुटी ड्यू हो जाता है। और पीएलवीआर क्या हुआ, मुझे एंड क्या देन मिल रहा है? सर परफॉर्मेंस वेरिएबल रेम्यूनरेशन बेसिकली सर बोनस हो गया कि जो भी आपका वेरिएबल पोर्शन होता है सीटीसी में इंक्लूडेड, वो आपको जो ईयरली मिलता है वो अमाउंट है। सो इट इट मे वैरी, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐड भी नहीं करती हैं ये कंपोनेंट, या बहुत सारी कंपनी इस कंपोनेंट को ज्यादा परसेंटेज में ऐड करती है। तो सपोजेटली सर कि आपकी अगर उन्होंने सीटीसी बनाई कि आपकी 2 लाख दिरहम्स ईयरली अगर सीटीसी है सपोजेटली, तो अब कुछ कंपनियां क्या करती हैं कि दे उसमें ना 30,000 का पीएलवीआर कंपोनेंट लगा दिया। नेट नेट में आपको 170 मंथली घर आएगा। 170 बाई 30,000 में से अब नाउ सब पे आउट की बारी आएगी, तो उसमें से वो लोग काट have not performed well, या maybe company have not performed well this year, we have calculated this much of PLR। तो ये सब बड़ी ट्रिक्स एंड वो रहती है। तो इसलिए आई सजेस्ट कि हमेशा 1 मंथ ऑफ सैलरी जो है आपका, उससे ज्यादा का पीएलवीआर आपके सैलरी कंपोनेंट में नहीं होना चाहिए। ठीक है। और ये धीरे धीरे मतलब कितना बढ़ा, क्योंकि इट इज नॉट नेसेसरी दैट वी कैन जज अ प्रोफेशन जस्ट बाय द स्टार्टिंग सैलरी, तो उसके बाद ये कितना बढ़ सकता है? वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन सर। इसमें सो दुबई मार्केट व्हाट आई हैव एक्सप्लोर्ड इज वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। वहां पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। इफ यू वांट टू डू इवन आप कुछ ये फर्म खोल के इफ यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस, तो सिंस वहां पे कॉर्पोरेट टैक्स हैज बीन वो इम्प्लीमेंटेड, दैट इज न्यूली इम्प्लीमेंटेड, देयर आर मेनी सीए फर्म्स which are earning like in hefty amounts. So basically sir, if I may ask you, एक नॉर्मल जीएसटी रिटर्न का मंथली व्हाट अमाउंट डू वी चार्ज टू अ एवरेज क्लाइंट जिसका मोस्टली 10 करोड़ या 20 करोड़ ईयरली टर्नओवर होगा और जीएसटी रिटर्न मंथली? अच्छा, मुझे ज्यादा ज्यादा आइडिया नहीं है। मोस्टली सर 5,000 या 10,000 के बीच में रहता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा फर्म है। अगर उसको हम छोड़ दें तो कि 5,000 या 10,000 के अंदर का रेंज होता है। बट देन इन दुबई वैट रिटर्न जो आपका क्वार्टरली होता है, वन वैट रिटर्न कॉस्ट अराउंड 1,000 दिरहम, which is around 50,000। ओके। And many firms many firms many firms जो फर्म्स वहां पे क्लाइंट उठा रहे हैं, वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं, बट देन उनके जो आर्टिकल्स है, उनके जो सीएज है, वो इंडिया में बैठे हैं एंड दे पे उनकी सैलरी इंडिया के हिसाब से, एंड दे टेक क्लाइंट से दुबई के हिसाब से, एंड दी कॉस्ट रेशियो इज अमेजिंग टू देम। एट द सीनियर लेवल फिर कितना पैसा इंडिया में बना भेज सकते हैं अगर कोई दुबई में रहता है? तो दुबई में घर खरीदना कितना क्रिटिकल है? लेट्स से आई वांट टू सेटल इन दुबई, सो वन एम बेस कि मैं घर खरीदूं वहां पे, घर कितने का आता है वहां? So if we talk about normal basic studio is maybe यहाँ पे इंडिया में there is not popular concept of studio। दुबई में स्टूडियो का कॉन्सेप्ट बड़ा पॉपुलर है। तो वो क्या होता है सर, एक ही मान लीजिए कि वो 500 स्क्वायर फीट, 400 स्क्वायर फीट का एक अपार्टमेंट है जिसके अंदर ओपन किचन है, और वो हॉल बोल लो उसको आप, बोल लो वॉटेवर, वो एक ही है बेडरूम एंड एक वॉशरूम। वो छोटा सा उसको स्टूडियो बोलते हैं वहां पे। तो डिसेंट बेसिक स्टूडियो कॉस्ट यू अराउंड 1 मिलियन दिरहम्स। 1 मिलियन दिरहम्स हो गए सर 2.5 करोड़ होता ओ बाप रे। है। सो अ बेसिक वन बेसिक स्टूडियो, उसमें में आप अगर ज्यादा लैविश में जाओगे है ना, मुझे तो इस एरिया में चाहिए, उस एरिया में चाहिए, या फिर मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तो इट वहां पे कैपिंग है ही नहीं। बट इफ आई टॉक अबाउट बेसिक स्टूडियो, दैट इज 1 मिलियन। एंड 1 BHK, इफ अगर हम थोड़ा ऊपर जाते हैं और 1 BHK हम लेने का सोचते हैं, तो इट्स अराउंड 1.2 to 1.5 मिलियन। तो जो अराउंड हो गया आपका 3 साढ़े 3 करोड़ के आसपास।
एंड कनक, बट ये देन जो आप अगेन, बता रहे हो, सर, इसमें एज यू राइटली पॉइंटेड आउट आपका एंटरटेनमेंट जीरो पकड़ा है। मतलब बंदा थोड़ा ट्रू। तो मूवी देखने जाएगा, कभी बुर्ज खलीफा जाएगा, कहीं कुछ करेगा। ये तो एकदम लुखर जिंदगी जो होता है, ये एकदम लुखर जिंदगी जीने के बाद ये पैसे आ रहे हैं, राइट? वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। तो वहाँ मूवी का कितना, टिकट का कितना कॉस्ट लगता होगा दुबई में? मूवी इज लिटिल चीपर देयर। तो जनरली वहां पे क्या है, सारे कार्ड्स में ऑफर रहता है 1-on-1 का। और एक मूवी टिकट कॉस्ट यू अराउंड 60 दिरहम्स। और 1-on-1 कर लोगे तो आपका वो 30 दिरहम्स पर टिकट हो गया, और 30 दिरहम्स होता है आपका 900 से 1000 रुपया। तो दुबई के हिसाब से आप अगर देखोगे, यू सी विद दैट पर्सपेक्टिव, तो 900 1000 रुपये एक मूवी का इज वेरी डिसेंट अमाउंट। कोई ज्यादा नहीं है, बट ऑब्वियसली हमें इंडिया में आदत है, जैसे यहाँ पे हम आइनॉक्स जाते हैं, तो इट कॉस्ट अस अराउंड 150 200 250 मैक्स 300। बट तो बंदा आप अगर मूवी वहां पे देखने महीना का 3 मूवी लंच भी देखोगे, करने जाएगा बाहर, लेट से मैकडोनल्ड चला गया या कुछ, उसमें कितना, 1000 1500 रुपये और लग जाएगा। आराम से सर। तो फिर इसमें आप जितना भी एंटरटेनमेंट ऐड करोगे, दुबई में देर इज नो लिमिट टू दैट। आपको एंटरटेनमेंट, आपको वहां पे बोलिंग, यू हैव गेमिंग अरीना, यू हैव स्कीइंग, एवरीथिंग। अब जैसे फॉर मी, एक विश लिस्ट में है कि आई हैव टू डू स्काई डाइविंग देयर। एंड जस्ट टू टेल यू द रेट ऑफ स्काई डाइविंग देयर, इट्स अराउंड 50 to 60 thousand। So ओके, if we keep on adding for the entertainment, then आप इसको भूल जाओ सर। The 16 will become 5 or 10। ये कब होगा पता भी नहीं चलेगा। अंडरस्टूड, ठीक है, कूल। But then there's also a motivating factor there. वहाँ पे if you see people, they are very fit in terms of their physique, in terms of their health, they are very fit। तो आपको उनको देख के एक मोटिवेशन जरूर आएगा सर, कि यू हैव टू ईट हेल्दी एंड यू हैव टू वर्क आउट। बिकॉज आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड ईटिंग हेल्दी और वर्कआउट स्टार्ट किया। नहीं तो इफ जनरली स्पीकिंग, आई नेवर वाज अ लीफ पर्सन, कि भाई ये पत्ता खा लो वो पत्ता खा लो। देयर आई स्टार्टेड ईटिंग लीव्स इन लंच। वो कुछ फेनुग्रीक लीव्स हो गया, वो कुछ भी तरीके का वो लीव्स वहां पे आता है। तो आई हैव सीन पीपल ईटिंग लीव्स इन, अब हम तो घास फूस ही बोलते हैं सर मारवाड़ियों में, हमें तो भुजिया पापड़ चाहिए होता है। तो दैट इज शिफ्ट, शिफ्ट टू अ हेल्थी लाइफस्टाइल व्हिच हेल्प्स यू ग्रो। क्योंकि आपका माइंड भी बड़ा स्टेबल रहता है, और इट हेल्प्स यू वेरी मच। फैंटास्टिक। ठीक है कनक, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग दैट वी हैड दिस कॉन्वर्सेशन। एंड आई थिंक जो फोक्स है जिनको और दुबई में इंटरेस्ट हो, दे कैन कनेक्ट विथ यू ऑन लिंक्डइन एंड ट्राई टू गेट your insights on this entire profession. So thank you so much for joining this session. Maybe हम लोग कुछ और इसके ऊपर फर्दर का भी डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू। श्योर सर, श्योर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।